Hello everyone, this is Vinod Gupta and we are going to learn BK 12th Commerce. In the last lecture we have discussed all the adjustment of final accounts, chapter 1 from the ebook given by Maharashtra government on the website. Today we are going to learn first question, we are going to solve it which is given on page number 24. So let us start without wasting any more time. Let me share you an Excel sheet where we can solve this problem. Before that, we will learn the whole question, how it goes. In front of your screen, illustration 1 is given. Daya and Chama are partners. So we are going through the question right now. Question number 1, page number 24, Daya and Chama. Daya and Chama are partners and their profit sharing ratio is 1:1. 1:1 means here equal profit sharing ratio they have. दोनों को 50-50% जो भी अमाउंट है वो मिलेगा, ऐसा इक्वल रेशियो है इसमें. From the following trial balance and additional information prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2009. ठीक है, तो यहाँ पर ईयर एंडेड आपको मार्क कर लेना है 31st March 2019 है एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. तो ट्रायल बैलेंस हमको दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, क्या उसमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह है तो उसको भी हम देखेंगे एक एक करके. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग stock is given where we will write in the trading account. ठीक है, trading account में debit side it will go, then bill receivable will be transferred to asset. Wages and salary, first word is wages, hence कहाँ जाएगा, again trading account में debit side में I will write TD in short. ठीक है, then we have sundry debtors. Sundry debtor is an asset है हमारे लिए, hence bad debts this is old bad debts, so we will transfer it to profit and loss account debit side. Purchases trading account debit side. Yes, motor car, it's an asset. Marking is little bit difficult for me. Machinery, asset again. Audit fees, profit and loss account, I'll write P&L. Sales return, less from sales, we can write trading account credit side, but better to show it as less from sales. Okay, so we will reduce it from the sales value. Discount trading account, no, not trading account, sorry, profit and loss account debit side. This is discount allowed. Building again asset. Cash asset. Investment asset. Now if you can see 10% investment is written. What 10% indicate here? 10% ये यहाँ पर बताया गया कि 10% हमको इस इन्वेस्टमेंट में मिलेगा आफ्टर द ईयर एंड. ठीक है, तो ये
इट्स अ काइंड ऑफ हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट का एक पार्ट है यहाँ पर। हम जब भी इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग हिडन एडजस्टमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो वी शैल मूव अहेड। इतना आपने देखा 10% इन्वेस्टमेंट कहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट 10% इन्वेस्टमेंट के बाद एडवर्टीजमेंट इज गिवन, so that will go to profit and loss account. Friends, again something in bracket they have mentioned, and if any information is given along with the transaction, that means there we have hidden adjustment, and hidden adjustment as well they have two effect, ठीक है। तो advertisement it's written like paid for 9 months, that means what we can understand, it is outstanding for 3 months because we have to pay for 12 month। 12 महीना पे करना था, 9 महीने का ही पे हुआ है, तो 3 मंथ का भी क्या है आउटस्टैंडिंग, तो उसका 2 इफेक्ट हमको देना होगा, ठीक है। रॉयल्टीज, रॉयल्टी विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। have capital here, capital will go to partners capital account, credit side, creditor, liabilities, RDD, P&L account, credit side it will go, again trading account credit side, I will write TC for short, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस पे करना बाकी है, लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस, ठीक है। तो जो परचेसेस है वहां से आप क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। डिस्काउंट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड बिकॉज इट इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो आई विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, profit and loss account credit side it will go, discount received, okay। So we have discussed this much. Now we will understand adjustment one by one. Closing stock, when closing stock is given we have to check if single amount is given or two amount is given. We have discussed in last lecture, if cost price and market value both are given then we have to take whichever is lower। यहाँ पर सिंगल ही दिया हुआ 40,000 दिया हुआ है हमको, तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% 3% रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब फर्स्ट के ऊपर फर्स्ट अप्लीकेबल होगा, तो फर्स्ट बिल्डिंग था तो बिल्डिंग के ऊपर 5%, सेकेंड मशीनरी है तो मशीनरी पे 3%, ऐसे हम लोग को उसको समझना है, ठीक है। तो क्या होगा, लेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एसेट, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल 3000, जो हमारा बिल रिसीवेबल था उसमें 3000 का क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो क्या करेंगे हम पहले ये 3000 क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल से माइनस करेंगे, ठीक है, असेट साइड में। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, डेटर में ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब वो हमारा बिल रिसीवेबल नहीं रहा, फिर से हमारा क्या बन गया, वो डेटर बन गया, ठीक है। तो डेटर में ऐड कर देंगे 3000 रुपीज। नेक्स्ट गुड्स वर्थ रुपीज 1000 टेकन बाय दया, तो दया ने यहाँ पर क्या किया है, ड्रॉइंग किया है, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया गया था, ठीक है। वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं है, तो ऑब्वियसली गुड्स विड्रॉ हुआ तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में। राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स, ये कौन सा बैड डेट्स है, आपने देखा था यहाँ पर हम लोग ने डेबिट साइड में बैड डेट्स देखा था एक ऑलरेडी, वो क्या था, ओल्ड बैड डेट्स। तो ये जो एडजस्टमेंट में दिया है ये क्या है, न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स हैव टू इफेक्ट, तो आपको क्या करना है, लेस फ्रॉम डेटर, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सिमिलरली यहाँ पे आरडीडी भी दिया फ्रेंड्स, आरडीडी इज गिवन एज 5% ऑन डेटर, सेम इफेक्ट आएगा, डेटर से लेस करेंगे, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और फिर गुड्स ऑफ 6000 सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड, मतलब ये क्या है, अनरिकॉर्डेड सेल्स,
अनरिकॉर्डेड सेल्स, रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर दो। मतलब क्या है, आप सेल्स में ऐड कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और दूसरी बात, सेल किया है पर पैसे अभी आए नहीं है तो आप क्या करोगे, डेटर में ऐड कर दोगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि आरडीडी 5% बोला गया है, कितना बोला है यहाँ पर 5%। तो ये 5% हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, या क्या ये इस एडजस्टमेंट का, ये नंबरिंग का कोई सीक्वेंस होगा क्या? तो हाँ फ्रेंड, इसका सीक्वेंस होगा। सबसे पहले हम लोग को करेक्ट डेटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप पहले क्या करेंगे, जो भी डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, जैसे बिल्स रिसीवेबल है, ये आपको पहले कर देना है। ठीक है। उसके बाद आप करेक्ट डेटर के लिए क्या फाइंड आउट करोगे, अनरिकॉर्डेड सेल, उसको लिख दोगे। ठीक है। इसके बाद आप फिर कहां पर जा सकते हो, फिफ्थ पर। ठीक है। तो फिफ्थ एडजस्टमेंट हमको सबसे लास्ट में लेना है, बराबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लेकर के यहां पर पेस्ट कर दिया, सो दैट साइमल्टेनियसली आप क्वेश्चन को भी रीड कर सकें और यहां पर हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है। सोल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर एक एक्सेल शीट बनाया हुआ है, जहां पर ऑलरेडी आप देखेंगे इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा। ठीक है। और फिर फर्स्ट अकाउंट आई मेड फॉर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सेकेंड, जैसा हम 11th स्टैंडर्ड में बनाया करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा एक अकाउंट यहां पर आ रहा है अभी फ्रेंड्स, जो आपको 11th में नहीं था, एंड विच वन इज दैट, यस, प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये 11th में आपने नहीं बनाया हुआ था, क्योंकि वहां पर प्रोप्राइटरशिप था। जो भी कैपिटल का एडजस्टमेंट होता था, आप कहां पर करते थे, बैलेंस शीट में ही करते थे। हालांकि कुछ क्वेश्चंस में यहां पर भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग को टेक्स्ट बुक में करके दिखाया गया है, बट मैं आपको अदर देन टेक्स्ट बुक डायरेक्टली अकाउंट में इसको कैसे सॉल्व किया जाए वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि करंट अकाउंट के टाइम पे या कैपिटल अकाउंट में जब ज्यादा एडजस्टमेंट होंगे तभी हमको यही काम आने वाला है। तो हम लोग अभी से इसको सीख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट वन, बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है। तो ये हमारे सामने है अभी, और हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखिए क्वेश्चन को रीड कर लिया है, अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आइटम है यहाँ पर, क्या है, स्टॉक है। तो स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में 2, क्या लिखेंगे आप, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। अभी उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है फ्रेंड्स, तो हम लोग उसको आउटर कॉलम में मेंशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, 28,000। तो बिल्स रिसीवेबल जो है वो आपको असेट साइड में लिखना होगा। बैलेंस शीट हमारे सामने है, यहां पर मैंने लिख दिया बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल अमाउंट था 28,000 और उस पर एक एडजस्टमेंट है, हेंस मैंने एक लाइन लीव कर दी वहां पर। ठीक है। नेक्स्ट वी विल चेक वेजेस एंड सैलरी, कितना है 9,000। और वेजेस किसका पार्ट होता है बोलिए, यस, ट्रेडिंग अकाउंट का। तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 2, वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है। और उसका वैल्यू है 9,000। आई डोंट थिंक कि वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट था, मैं भी फिलहाल इसको आउटर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं था। नेक्स्ट, डेटर 1,32,500, डेटर कहां जाएगा, असेट साइड में। तो बैलेंस शीट में हम जा रहे हैं, यहां पर हमने लिखा डेटर्स 1,32,500। और फ्रेंड्स हमने देखा उसके ऊपर काफी सारे एडजस्टमेंट थे, लगभग 3 एडजस्टमेंट है। तो 3 एडजस्टमेंट के लिए हम लोग वहां पर एवरी एडजस्टमेंट के लिए हम लोग को क्या करना होता है, 1 लाइन लीव करना होता है और 1 लाइन टोटलिंग के लिए लीव करना होता है। तो ये 1 फर्स्ट एडजस्टमेंट, फिर टोटल
सेकेंड एडजस्टमेंट, देन टोटल, थर्ड एडजस्टमेंट एंड देन टोटल, ठीक है। और भी देखेंगे तो हम लोग 5 to 6 लाइन्स वहां पर लीव कर देते हैं, सो दैट इफ एनी एडजस्टमेंट कम्स वी कैन हैव प्रॉपर स्पेस फॉर दैट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री डेटर्स वी हैव टेकन, बैड डेट्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएगा। आई विल लीव वन लाइन हियर, एक लाइन मैंने यहाँ पे लीव करके रखा हुआ है। अगर इन द केस ऑफ लॉस, ग्रॉस लॉस अगर मुझे आता है तो आई विल ट्रांसफर इट हियर, ठीक है। तो ये लाइन मैं लीव कर दूंगा, यहां से आई विल स्टार्ट। तो आई विल राइट टू ओल्ड बैड डेट्स, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में फ्रेंड्स आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में ये शॉर्टकट चलता है, ठीक है। तो ओल्ड बैड डेट्स का वैल्यू जो था हमारे लिए वो 1000 था, और इसके ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है, तो इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट परचेसेस इज 1,48,000, तो हम यहां पर आ गए एंड वी विल राइट टू परचेसेस इनर कॉलम में, क्योंकि इस पे रिटर्न्स है 1,48,000। फिर मोटर कार दिया हुआ है और दिया हुआ है मशीनरी, ठीक है। तो 68,000 और 1,14,800 असेट साइड में आ जाएंगे। मोटर कार, आई विल राइट इट हियर मोटर कार। आई डोंट थिंक कि मोटर कार पे कोई एडजस्टमेंट था, तो 68,000 मैंने लिखा। और फिर यहां पर मशीनरी 1 लाख। लेट मी चेक द वैल्यू अगेन। मशीनरी का वैल्यू है यहां पर 1,14,800, ओके। तो यहां पर लिख देते हैं 1,14,800। तो ये आ गया है मशीनरी, और एक डेप्रिसिएशन के लिए स्पेस रख दिया हमने। Then we have audit fees. Audit fees is the part of profit and loss. To audit fees कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1,200 we will write in outer column. Next is after audit fees sales return 2,000 का है, और सेल्स रिटर्न आपको पता है कहां हम लेकर जाते हैं, यस मैं यहां पर लिख दूंगा उसको। सेल्स रिटर्न एंड वैल्यू इज 2,000। यहां पर ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट था अनरिकॉर्डेड सेल्स का, तो उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ रखा है, ठीक है। तो उसको आपको कंसीडर करना है इन बिटवीन। नेक्स्ट देखिए, सेल्स रिटर्न के बाद हमको क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट एंड अमाउंट इज 2,300। ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड। तो यहां पर मैं सेपरेटली लिख लेता हूं टू डिस्काउंट अलाउड। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम उसका वैल्यू लिख देंगे 2,300। इसके बाद क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग एंड कैश एट बैंक, ठीक है। तो बिल्डिंग इज 75,000। एसेट साइड जाएंगे हम, ये वी विल राइट, हमें पता है बिल्डिंग के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग 75,000 एंड कैश एट बैंक, ठीक है। कैश एट बैंक कितना था याद है आपको, कैश एट बैंक वॉज 12,000, ठीक है। तो वी विल राइट 12,000 हियर in the outer column. Since cash doesn't have any adjustment here. Next is what, 10%
इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट भी कहाँ जाना चाहिए, असेट में जाना चाहिए, और आप देख सकते हो उस पर हिडन एडजस्टमेंट है, तो हम इन्वेस्टमेंट लिख देंगे वर्थ रुपीज 20,000, 10% इन्वेस्टमेंट, 10% investment, right? 20,000. One line we have left for adjustment. After investment, 20,000 का इन्वेस्टमेंट था, हमने करेक्ट लिखा है क्या? Yes, we have written it correctly. Then advertisement is given as 4,500, तो प्रॉफिट लॉस में आना चाहिए, यहाँ लिखा हमने 2 एडवर्टीजमेंट, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 4,500, हमने देखा था उस पर हिडन एडजस्टमेंट है 3 मंथ्स का, तो फिर हम लोग वहां पर भी एक लाइन लीव कर देंगे, और इसके बाद क्या दिया है देखिए, रॉयल्टीज 3,000, तो रॉयल्टीज किसका पार्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 रॉयल्टीज, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3,000, ओके। तो हमने क्या किया अभी, हमने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के जो सारे आइटम्स थे उसकी पोस्टिंग कर दी है, अब हम कहा जाएंगे, हम क्रेडिट साइड में जाएंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं जो पहला आइटम हमको दिया है जनरल रिजर्व दिया है, ये क्या होता है, ये सेविंग होता है, फॉर्म का सेविंग होता है, ठीक है, और जैसे कैपिटल एक लायबिलिटी होता है वैसे जनरल रिजर्व भी एक किसका होता है, ये पार्टनर्स का होता है, जब भी हमारा फॉर्म बंद होगा तो ये जनरल रिजर्व का पैसा हम किसको दे देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे, तो ये जो जनरल रिजर्व है 14,500, ये हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर हम कुछ स्पेस रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूं जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व का जो भी वैल्यू है हम यहाँ पर लिख देंगे 14,500, ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेंशन किया 14,500, इसके बाद कैपिटल, अभी 11th स्टैंडर्ड में जब प्रोप्राइटरी कंसर्न था तो कैपिटल सभी उठाकर कहाँ लिख देते थे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे टॉप पे लिख देते थे, बट ये क्या है, ये प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं है, ये क्या है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, तो हमने क्या किया है, इसके लिए सेपरेटली एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर किया, अब ये कैपिटल है तो कैपिटल शोज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में इसको कहाँ पुट कर देंगे, क्रेडिट साइड में पुट कर देंगे, तो कैपिटल है 1,60,000 और 1,20,000, तो ये यहां पर क्या आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हम यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 1,60,000 और 1,20,000, तो कैपिटल भी हमने लिख दिया है अभी, क्रेडिटर्स, अभी क्रेडिटर्स का जो वैल्यू है दैट इज गिवन 98,000, और क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी, तो क्रेडिटर हम लोग यहां पर लिख देंगे, जनरल रिजर्व के ठीक नीचे हम लोग लिख सकते हैं क्रेडिटर्स 90,000, सॉरी 98,000, तो क्रेडिटर को 98,000 हम ऐसा यहां पर लिख देते हैं, ओके। अच्छा, क्रेडिटर के बाद क्या है देखो, आरडीडी इज गिवन 1,800, आरडीडी अभी देखिए दो टाइप से लिखा जा सकता है, या तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जो हमारा फॉर्मेट होता है, टू ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, तो ये आरडीडी आप वहां से क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, ठीक है,
और अगर ऐसा आपको नहीं करना है तो ये क्रेडिट साइड में दिया है तो आप पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्रेडिट साइड में लिख देता हूँ टू RDT, ठीक है। और ये कौन सा RDD है? ये ओल्ड RDD है, बराबर है। और कितना दिया हुआ है? 1800। देन सेल्स, आप सेल्स देख रहे हैं, सेल्स इज 2,85,500। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बाय सेल्स 2,85,500, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग मतलब हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो कहां जाना पड़ेगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। अच्छा, था कितना वेजेस? लेट्स चेक दैट। क्या था? आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, वेजेस पे करना बाकी है, ठीक है। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस वी हैव डन। परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 4000 माइनस हो जाएगा। तो वी विल राइट हियर टू, नॉट टू, लेस परचेस रिटर्न, ठीक है। हाउ मच? 4000। और इसका हम लोग यहीं पर वर्किंग कर देते हैं। 1,44,000 हो जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग 4,000 फ्रॉम 1,48, 1,44,000 विल रिमेन, ठीक है। लास्ट आइटम डिस्काउंट। डिस्काउंट इज गिवन एज 1,800। तो आप फिर से पीएनएल अकाउंट में आ जाएंगे और वहां पर बाय डिस्काउंट रिसीव्ड आपको लिखना, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1,800। ओके, वन मिस्टेक आई हैव मेड। इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? मुझे बाय लिखना चाहिए था। तो मैं उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे क्रेडिट साइड आप बाय से स्टार्ट करेंगे, ओके, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? सारे के सारी पोस्टिंग्स कर दी अभी। नाउ एडजस्टमेंट वन बाय वन। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक 40,000। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट इज 40,000, ठीक है। और यही आप कहाँ लिखेंगे? सिमिलरली बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक and amount is 40,000. We have finished with adjustment number 1. Now adjustment number 2, depreciate building by 5%, ठीक है। तो 5% से आपको बिल्डिंग को रिड्यूस करना है। आप देख लीजिए बैलेंस शीट में एसेट साइड बिल्डिंग, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, ठीक है। अब 75,000 का यू विल कैलकुलेट 5%।
तो 75,000 पे 5% we will calculate, into 5%, ठीक है। इसका आंसर हम लोग निकालेंगे, दैट विल कम टू 3750, बराबर है। तो ये हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे 3750, तो वैल्यू will be 71,250 some around, just check it out। अब ये जो वैल्यू आया है हमारे पास 3750, ठीक है, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, सेकेंड इफेक्ट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। यस, वी आर ऑन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वी विल राइट हियर टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये हम लोग क्या कर देंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे प्रॉपरली, क्योंकि ये हमारा हेडिंग है, और इसके नीचे वी कैन राइट बिल्डिंग, और उसका वैल्यू हो जाएगा 3750, ठीक है, जो वैल्यू हमको आया था। और एक डेप्रिसिएशन आने वाला है मशीनरी पे, तो पहले से हम लोग उसके लिए स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, मशीनरी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है मशीनरी जो है, वहां पर हमको 3% का डेप्रिसिएशन लेना है, ठीक है। तो मशीनरी देख लेते हैं। यस, यहाँ पर वी विल राइट डेप्रिसिएशन एट द रेट 3%, ठीक है। तो वैल्यू है 1,14,800, और उस पे हमें 3% निकालना है, दैट विल कम टू 3,444, ठीक है। तो 3% हम निकाल देंगे, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो है 111,356। तो अभी ये जो वैल्यू हमारे सामने है, इसको भी हमको कहाँ लेकर जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। तो 3,444 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, 3,444, ठीक। और हम क्या कर सकते हैं, इसको, इसका जो टोटल है 3750 प्लस 3,444, ये आउटर कॉलम में 7,194 ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका टोटल हमने ले लिया 7,194। चलो, एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 2 इज ओवर, दोनों के इफेक्ट दो दो हमने प्रोवाइड कर दिए। अभी एडजस्टमेंट नंबर 3, इट्स रिगार्डिंग बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3,000। तो बिल रिसीवेबल में से 3,000 का क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो वहां से लेस करना पड़ेगा 3,000। तो आप यहां पर लिख देंगे लेस डिसऑनर्ड, अमाउंट इज 3,000, ठीक है। तो 28,000 के फिगर में से 3,000 माइनस हो जा रहा है, 25,000 इज रिमेनिंग। और सिमिलरली आप क्या करेंगे, डिसऑनर, इसको डेटर में आपको क्या कर देना है, ऐड करना है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि बिल रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा और डेटर में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। मैं अभी यहाँ पर फिलहाल शॉर्ट में लिख देता हूँ, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ओके, वैल्यू 3,000। इसका टोटल हम ले लेते हैं 1,35,500। अब ये डेटर का फिगर जो हमारा था वो न्यू फिगर आ गया, क्योंकि हमने डिसऑनर्ड का जो वैल्यू था वो ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 3। अभी है एडजस्टमेंट नंबर
4, वेट हमने क्या उसका सेकंड इफेक्ट पास किया, यस सेकंड इफेक्ट भी पास हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, गुड्स वर्थ रुपीज 1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, तो ये पर्सनल यूज के लिए हो गया। तो फर्स्ट इफेक्ट जो होगा, हमने बात की थी गुड्स जब भी विड्रॉ होगा वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्पेस बना देता हूं, बाय गुड्स विड्रॉन बाय दया, ठीक है। तो दया ने कितने का गुड्स विड्रॉ किया है, दया ने गुड्स विड्रॉ किया है 1000 का, तो 1000 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और सेकंड इफेक्ट जो है वो आपको देना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है 2 गुड्स विड्रॉन लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं डायरेक्टली ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग दया ने किया है तो ये दया के कॉलम में आ जाएगा, क्षमा ने कोई ड्राइंग नहीं किया तो वहां पर डैश कर देंगे हम, ठीक है। तो नंबर 4 इज ऑल्सो ओवर। अब हमने बात की थी नंबर 5 जो है वो हम सबसे लास्ट में करेंगे, तो नंबर 5 करने के पहले आपको क्या करना है, नंबर 6। नंबर 6 क्या बोलता है, गुड्स ऑफ रुपीज 6000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सेल किया है कितने का, 6000 का, तो ये क्या है, अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर सेल्स में ऐड कर देना है आपको, अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो यहाँ पर आपने जो वैल्यू है कितना 6000 वो लिख दिया, इसका हम लोग टोटल आउटर कॉलम में यहाँ पर ले लेते हैं, तो 2,85,500 प्लस आपने 6000 ऐड किया और उसमें से 2000 लेस किया है, तो 2,89,500 ये फिगर आ जाता है यहाँ पर। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स हुआ बट रिकॉर्ड नहीं हुआ, सेल हुआ है तो डेटर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अगेन अनरिकॉर्डेड सेल्स और वैल्यू था 6000, इसका टोटल ले लेते हैं हम 1,35,500 प्लस 6000, तो 1,41,500 ये फिगर हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमको नया फिगर मिल गया, डेटर का फाइनल फिगर मिल गया। अब हम एडजस्टमेंट नंबर 5 कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो क्या था, सबसे पहला राइट ऑफ 1000 ऑन बेड डेट्स एज बेड डेट्स, ठीक है। तो बेड डेट्स 1000 का है और वो भी कहां से रिड्यूस होता है, डेटर में से रिड्यूस होता है, तो आप लेस करेंगे, लेस इसे हम बोलेंगे न्यू बेड डेट्स, और न्यू बेड डेट्स का वैल्यू था सिर्फ 1000, जो न्यू वैल्यू है 1,40,500 ऐसा आ गया है। और इसका जो सेकेंड इफेक्ट है आप उसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे, यहाँ पर आपको उसको ऐड करना है, ठीक है। न्यू बेड डेट्स अमाउंट इज 1000, सॉरी आई मेड मिस्टेक, राइट ऑफ 1800 एज बेड डेट्स, ठीक है। यहाँ से थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा है, जो अमाउंट है बेड डेट्स का वो 1800 है, तो मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ 1800 ये आपको यहाँ पर लिखना है, और डेटर में से भी आप जब लेस करेंगे तो आपको 1800 ही लेस करना है, ठीक है। तो ये चेंजेस मैंने किया यहाँ पर, तो ये 139,700
ये हमारा फाइनल फिगर आ गया है। इसके बाद बताया गया है आरडीडी के बारे में। आरडीडी देखो, आरडीडी क्या बोला है, आरडीडी इज 5%, आरडीडी इज 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो अभी हमारा करेक्ट डेटर हमको मिल चुका है, अब हम उस पर आरडीडी निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं फिर से बैलेंस शीट की तरफ, और यहां पर लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 5%। ठीक है, तो 1,39,700, उसका 5% हम ले लेते हैं, दैट विल कम टू 6985, 6985। और ये लेस करने के बाद वैल्यू हमें मिलेगा 1,32,715। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गया। अब ये जो 6985 है, ये हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे। न्यू आरडीडी 6985। ठीक, चलो ये सब का हम टोटल ले लें। हमारे सामने 1000 है प्लस 1800 प्लस 6985, इट कम्स टू 9785। ओके, तो ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट हमने फिनिश कर दिए, पोस्टिंग हो गई। अब कास्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो कास्टिंग स्टार्ट करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है या डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। उसी के बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल देख लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आप यहाँ पर टोटल देख सकते हैं, इट इज 3,30,500। ओके, और डेबिट साइड का जो टोटल है वो हमें दिख रहा है 2,21,000 का। तो हम क्या करते हैं, हमें पता चल गया क्रेडिट साइड इज मोर, तो हम लोग पहले क्रेडिट साइड का लिख देते हैं 3,30,500, और उसमें से ये जो डेबिट साइड का टोटल है इसको हमें क्या कर देना है, 2,21,000 माइनस करना है। तो 2,21,000 माइनस करने के बाद जो फिगर आता है हमको वो है 1,09,500। ओके, तो ये 1,09,500 को हम क्या बोलेंगे, वी विल राइट इट एज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है आपका, आप इसको देखिए, एरो मार्क मैंने करके रखा है ऑलरेडी। आप उसे कहां शिफ्ट करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो ये वैल्यू आप वहां पर लिख देंगे 1,09,500 का। जैसे अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट का किया है क्लोजिंग, वैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग करेंगे। यहाँ का हम टोटल देख लेते हैं, क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का जो वैल्यू हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो है 1,13,300, सॉरी 1,13,100। और डेबिट साइड का जो टोटल है वो है सिर्फ 20,479। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले क्रेडिट साइड का टोटल लिख देते हैं, $1,13,100। आई डू वन थिंग, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
1 लाख 13,100। ओके, तो ये टोटल आ गया यहाँ पर। अब इसमें से मैं ये जो डेबिट का टोटल था 20,479 ये माइनस कर दूंगा। चलिए इसका टोटलिंग हम करें। इसके पहले हम देख लेते हैं हमारा हिडन एडजस्टमेंट जो था। यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट था 10% इन्वेस्टमेंट, राइट है। अब 10% इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो कितना है 20,000। तो 20,000 के ऊपर 10%, तो हमें कितना मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 2,000 का। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल है। इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, असेट साइड में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ऐड कर दोगे। तो हमने देखिए स्पेस रखा हुआ था 10% इन्वेस्टमेंट का, तो वहां पर हम ऐड कर रहे हैं, ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो 2,000 हमने यहाँ पे ऐड किया एंड दैट विल बिकम 22,000। और ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो आप इसको प्रॉफिट लॉस में यहां पर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल। ठीक है, रिसीवेबल क्योंकि अभी तक ये मिला नहीं है। अमाउंट है 2,000। ओके, ये एक एडजस्टमेंट हो गया। सेकेंड जो एडजस्टमेंट है वो है एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ, पेड फॉर 9 मंथ। ठीक है, तो 4,500, ये जो 4,500 है ये 4,500 9 मंथ का है। तो अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं 9 से, 4,500 को 9 से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, ठीक है ना, तो मुझे आउटस्टैंडिंग वैल्यू पता चल जाएगी कि कितना पे करना बाकी है, राइट है। तो हम लोग उसको वर्कआउट करके देखते हैं। 4,500 डिवाइड बाय 9 into 3 and that comes to 1,500, 1,500। ठीक है, तो ये जो 1,500 है, हम सबसे पहले एडवर्टीजमेंट में यहां पर देखिए हमने स्पेस रखा हुआ है, तो यहां पर हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और आउटर कॉलम में वैल्यू हो जाएगा 6,000। और ये आउटस्टैंडिंग है तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस के नीचे ही हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट। ठीक है, 1,500। चलो, हिडन एडजस्टमेंट में हमने फिनिश किया। अब करेक्ट टोटल ले लेते हैं फिर से हम। इन सब का क्या टोटल है पीएनएल अकाउंट में, तो ये टोटल आप यहां पर देख पा रहे हो 1,15,100, ये टोटल आ जाता है। तो मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, हमने एक मिस्टेक किया था, 1,15,100 ये हमने लिख दिया 1,15,100, राइट है। और डेबिट साइड का टोटल ले लेते हैं, डेबिट का टोटल है 26,479। तो हमें जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो है 88,621 का।
ठीक है, 88,621 ये हमको प्रॉफिट दिखता है। अब ये प्रॉफिट आने के बाद इनिशियल हमने यहां पर देखा था कि ये प्रॉफिट क्या होता है, ये एक रेशियो में डिवाइड होगा जो है 1:1। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये किस में डिवाइड हो जाएगा, दया एंड क्षमा। तो दया और क्षमा में ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये जो 88,621 का फिगर हमारे सामने है, हम उसे 50-50 डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा 44,311 एंड 44,310। ठीक है, 1 रुपए का इंक्रीज डिक्रीज है, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए एरो मार्क ऑलरेडी मैंने किया है। ये जो फिगर्स आए हैं आप ये किसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स को, उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहां पर हमें लिखना है बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इन्हें कितना मिल गया, 44,311, 44,310 ये वैल्यू मिल गया। अब इन्हें यहां पर हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का जो टोटल है वो है 24,311 और यहां पर जो टोटल है वो है 1,64,310। तो हम ये दोनों साइड में लिख देते हैं 1,64,310 और 20,4311। अब क्या होगा, ये जो क्रेडिट साइड का टोटल है इस टोटल में से हमको डेबिट साइड के वैल्यू को लेस करना है। तो यहाँ पर एक ही आइटम है ड्राइंग का और वो है 1,000। तो ये जो वैल्यू है इसमें से आप माइनस कर देंगे तो आता है 203311। राइट है, 1,000 हमने माइनस कर दिया और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगा 1,64,310। तो आप यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब ये जो कैपिटल का बैलेंस आया है आप उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, आप उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे और बैलेंस शीट में आप यहां पर नोटेशन लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ये फाइनल फिगर हमारा हो जाएगा किसका, कैपिटल, दया और क्षमा। तो दया का जो वैल्यू है वो है 20,3311 और क्षमा का जो वैल्यू है वो है 1,64,310। तो हम ये दोनों को ऐड कर लेंगे, 2,3311 प्लस 1,64,310। तो ये जो वैल्यू आता है वो है 367621। अब हम चेक करेंगे सारे एडजस्टमेंट होने के बाद क्या ये टैली होता है। तो देखिए आप यहाँ पर इसका जो सम दिखाई दे रहा है हमको ये है 4,82,321। राइट है, मैं इसको यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ हमारे रेफरेंस के लिए, 4,82,321 और इसका भी हम लोग टोटल देखेंगे क्या ये सेम आ रहा है। तो यस, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 4,82,321। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सम यहाँ पर टैली हो गया।
तो आपने देखा कि पार्टनरशिप फॉर्म में कैसे सेपरेटली करंट नहीं कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, और कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है वो हमको ट्रांसफर करना है, कहां पर, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व करेंगे। आप लोगों को घर पर इसको प्रैक्टिस करना है विदाउट लुकिंग एट द आंसर, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।